Students, am I audible? Students, how the study is going? Tell me. First of all, I hope that you all must be safe and sound. Stay at home. Is Arpit Uday, am I audible? Yes, ma'am. What's wrong with you? Arpit Uday. Anurag, now I am audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, what we did in previous class? Good evening, ma'am. Good evening to one and all. Ma'am, pronoun. Pronoun किए थे हमने. Yes, very good. Arpit Uday, you attended my class of pronoun? I don't think so. You were No. there? No. First time? Yes, ma'am. I am first time here. This is your first time, right? Okay. So in previous class we did pronoun. Before moving on to pronouns, I would like to tell you something about pronouns because this is your first class. First of all, let me know I'm conversing with all of you in English. Any problem? किसी को problem है? No, ma'am. Okay. What is pronoun? Pronoun is a word, or you can say Ma'am, that is used at the place of noun. in place of noun. Those words which are used in place of nouns are called pronouns. Pronoun. Personal pronoun. It refers to person or a thing. First person, second person, and third person. Yes, pronoun is a word that we use in place of a noun, right? They don't admit determiners. Now I'm telling you, pronoun which is used in place of the name of a person or a thing is known as a personal pronoun. First person, I, he. First person. Second person, you. Third person, he, she, it, they. Right? Mine. Mine क्या है? First person. Mine, we, first person. Mine क्या है? First person, but ये show करता है. बच्चे ये show करता है possession. Possession show means belongingness. Possession का मतलब क्या होता है? Belongingness. Like this pen is mine. This pen is mine. ये पेन किसका है? ये पेन मेरा है. Right? Okay. That pen is yours. I and we. ये क्या है? Pronouns हैं ये. I, we, first person. First person. You. Good second. evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, बच्चे. Good evening. Very good evening. Okay. Second person. You second person. Third person. He, she, it. ये क्या है? Third person है. He, she, it. they क्या है ये? Third person. Right? Person. First person, I and we, first person. Second person, you, he, she, it. Third person. Mine क्या है? Show करता है possession. Yours भी possession show कर रहा है. Hers, theirs. ये सारे क्या है? Possession show कर रहे हैं. Possession means belongingness. Like that car is hers. ये कार उसकी है. ये verb ले रही है. It's taking verb. That car is hers. अगर मैं बोलूँ that is her car, her के बाद क्या आ गया? कार. कार आ गया, वो क्या है? नाउन. नाउन आ गया ना. नाउन क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं. Then self is added to. अब सेल्फ, जब एम्फेटिक प्रोनाउंस में सेल्फ बहुत ऐड होता है. क्या ऐड होता है? सेल्फ. माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ. दे है तो देम सेल्फ आएगा. दोनों में सेल्फ होता है. रिफ्लेक्सिव में लास्ट में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है. एम्फेटिक में एकदम यहाँ पे साथ में आता है. किसके साथ आता है? सब्जेक्ट के साथ आएगा. माई सेल्फ. ठीक है जी, समझ आ गई इतनी? Yes, ma'am. हाँ. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ये वर्ब के बाद आया तो ये रिफ्लेक्सिव है. अगर सब्जेक्ट के बाद आएगा तो एम्फेटिक होगा. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? इट शोज, इट रेफर्स, या फिर आप पॉइंट आउट करते हैं किसी समथिंग, समबडी. ठीक है? दिस इज अ गिफ्ट. दीज आर मेयर एक्सक्यूजेस. दैट, दिस, दैट, दीज, दोस. बट साथ में वर्ब आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना. अगर नाउन आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. जैसे दैट गिफ्ट हैज बीन गिवन बाय माय फादर. अगर गिफ्ट आ जाएगा तो ये क्या? गिफ्ट क्या? नाउन है ना. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है. ठीक है? समझ आ गई इतनी?
Yes, ma'am. Yes, indefinite pronouns. Indefinite pronouns, all pronouns which refer to person or things in general way. When we are not sure, like somebody, anybody, all, many. Like if I say, I give you an example. Somebody is knocking at the door. I don't know. मुझे नहीं पता है कि डोर पे कौन है. I don't know. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मेरा फ्रेंड भी हो सकता है. इफ आई से राम इज नॉकिंग एट द डोर, इट मींस यू आर श्योर. इफ यू से somebody मींस कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता. somebody or who is drawing please. Somebody has stolen my watch. in terrible few, anybody. here we are not sure, surety नहीं है. we are not taking the name. हम किसी स्पेशल किसी पर्सन का नेम नहीं ले रहे हैं. here we are not taking, right? all में बहुत सारे हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं. many, one always follow once. one के साथ क्या आता है? once. Are you getting me now? Abhi Dude, are you getting me? What I'm Yes, ma'am. बच्चे समझ आ रहा है जितना मैंने पढ़ाया है? Demonstrative, Yes, ma'am. that, Yes, ma'am. those, indefinite, Yes, ma'am. all, many, one. Yes, ma'am. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए. डिस्ट्रीब्यूटिव, each, either, neither. They always take each, every, either of you. कोई भी. It always take each of, either of, neither of. But verb always comes singular. Verb क्या आएगी हमेशा? Singular. Each, every, either, neither. They always take singular verb. They always take singular. Right? Relative pronoun. I, who, which. They connect. Who, which, that. Right? Interrogative. Whose, what, which, whom, who, how भी आ सकता है. WH family. इसको क्या बोला जाता है? What we call it? WH family. क्या बोला जाता है इसको? WH family. But they take verb. is आ सकता है, am आ सकता है, sorry, is आ सकता है, are, will, shall, कुछ भी आ सकता है. राइट? इतना हो गया क्लियर? अब देखिएगा बिहेवियर प्रोनाउंस. फर्स्ट, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, so always use this formula. 2 3 1 means second person, third person. इसमें he भी हो सकता है, she भी हो सकता है, it भी हो सकता है. और फर्स्ट पर्सन मीन्स I और we. विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 3 1. अगर कुछ गलत होता है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो व्हाट विल यू डू? लाइक I, you and he are friends. सेकंड, थर्ड एंड वन. सेकंड पर्सन आया पहले, फिर थर्ड आया, फिर फर्स्ट आया. ही क्या है? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. Whenever three pronouns are used together in the same sentence and the sentence conveys the sense of, अगर कोई sense है, guilt है या flaw है, कुछ ऐसी गलत चीज के लिए, always keep yourself at first place. 1 2 3. 1 2 3. Like I, you and he are to blame. I, you and he. blame के लिए पहले अपने आप को रखना, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन. राइट? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स. जब दो की बात हो रही है तो दे आएगा. दे इज यूज्ड फॉर प्लूरल. लाइक इफ द नाउन जॉइंड बाय एंड, अगर एंड है, द प्रोनाउन शुड बी सिंगुलर. सेम पर्सन हो रहा है. मिस्टर केशवानी, माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज. एक मिस्टर केशवानी है जो फ्रेंड भी है, प्रिंसिपल भी है. लास्ट में क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में, तो हिज आएगा. दिल्ली, द हेरिटेज सिटी एंड कैपिटल ऑफ इंडिया, इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. इट्स, एक की बात हो रही है. क्लियर हुआ है ये फॉर्मूला? अर्पित उदय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any query? Yes, ma'am. Okay. When we two singular nouns are joined by and refer to two different portfolios. कैसे? The manager and owner.
expressed his views on the demands of the worker. जब दो सिंगुलर नाउन्स हैं ज्वाइन हो जाते हैं एंड के साथ, तो क्या है, वन पर्सन पोर्टफोलियो क्या है, सेम है, पर्सन तो एक है ना, राइट। जैसे द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज, पार्टी अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, व्यूज अलग है, तो ये क्या है, प्लूरल। अब देखिए, अब ध्यान से दीजिए, ध्यान, एज वेल एज, when two nouns are joined by as well as का मतलब होता है मोहन as well as his friends is doing his work। मोहन और उसके फ्रेंड्स, मोहन and his friends is doing his work, so it will always go with first subject। फर्स्ट क्या है, मोहन है, his क्या होता है, अपना काम कर रहे हैं, अपना, मोहन है तो हम क्या लगाएंगे, his, क्या लगाएंगे हम, his। as well as friends है तो हमने their नहीं लगा देना। as well as में हमेशा जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, क्या चलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो है, the students as well as their class teacher are doing their work। अब देखिएगा, इसमें भी as well as आ गया है ना, इसमें as well as, तो क्या आएगा यहाँ पे, as well as है ना, यहाँ पे भी ये देखिएगा, क्या चीज मैंने बताई थी, शरीर, टर्न ऑन योर वीडियो, स्टूडेंट्स as well as their class teacher are doing their work। अब मैंने क्या चीज बताई थी, as well as मतलब वो भी, बट जो सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम पोजेसिव लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। फर्स्ट नंबर पे क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ज्यादा है तो क्या आएगा, देयर। अगर स्टूडेंट होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, तो व्हाट वुड वी हैव यूज्ड, क्या यूज किया होता हमने यहाँ पे, बताइएगा। अगर मैं लिखती द स्टूडेंट एज वेल एज देयर क्लास टीचर आर डूइंग वर्क, क्या लगाते हैं यहाँ पे, फिर आता एज वेल एज हिज आता बच्चे यहाँ पे। मैं फिर बता रही हूँ कि एज वेल एज जब आता है तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये पोजेसिव चलेगा, समझ गए? यस मैम। हाँ जी, एनी क्वेरी अभी तक पूछिए मेरे से, कुछ पूछना बच्चे पूछिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम, ये कोई सिखा दो। कौन सा वाला? मैम यही नाउन जो आपने अभी एज वेल एज, ओके। एज वेल एज में बच्चे क्या होता है ये देखिएगा, दोबारा से फिर कराती हूँ। एज वेल एज होता है वो भी, मतलब एज वेल एज। अब देखिएगा, मोहन एज वेल एज, बच्चे कोई क्वेरी है साथ के साथ क्लियर किया करो। मोहन एज वेल एज, मोहन और उसके फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क। अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए, आप क्या करोगे, एज वेल एज फ्रेंड्स आर डूइंग देयर वर्क, ये लिखोगे ना। बट नहीं, एज वेल एज में मोहन और उसका फ्रेंड, मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है ना या प्लूरल है मोहन? सिंगुलर तो फिर हमने क्या लगाया, सिंगुलर है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हिज लगाया। हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है जो फर्स्ट नंबर पे। अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है, एज वेल एज। अगर यहाँ पे सिंगुलर भी होता तो फिर भी हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हर लगाते, हिज लगाते, क्या लगाते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं हम, देयर। देयर मीन्स अपना काम कर रहे थे, देयर मीन्स अपना काम कर रहे थे। हाँ जी, राइट, समझ आ गया, इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस मैम। यस। When two singular nouns joined by and are preceded, अब every man, जब भी every आ जाए, each आ जाए, तो क्या आएगा, ये भी every boy and each girl went to her house। दो singular nouns आ जाएंगे by each और every, the pronouns used must be singular and should agree। अब एज वेल एज में हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते थे ना, जो फर्स्ट नंबर पे है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर लड़का है तो हिज लगा दिया, लड़की है, अगर यहाँ पे टीना होती तो हम लगा देते हैं, यहाँ पे अगर टीना होती तो हम लगा देते हर, क्या लगा देते हम, हर। अब देखिए, अब एवरी है, ईच है, इसमें सेकंड के अकॉर्डिंग चलना है।
किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? सेकंड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चे? अब विमेन क्या है? वुमेन क्या है? हर आएगा ना इसके लिए। अब गर्ल है उसके लिए भी हर आएगा। अगर मैं लिख देती कि ईच गर्ल एंड ईच बॉय, तो फिर क्या लगाते हैं यहाँ पे? ईच गर्ल होता, ईच गर्ल एंड ईच, फिर क्या लगाते? ईच बॉय। हाँ जी पूछिए। अगर ईच बॉय होता तो क्या लगाते आप? हाँ जी पूछिए। यस, फिर आता हिज। हमें सेकंड के अकॉर्डिंग चलना है। एज वेल एज में हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलते थे, इसमें हमें सेकंड के अकॉर्डिंग चलना है। राइट? क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब देखिएगा, कोई क्वेरी है? यस। अब देखिएगा, when two nouns are joined with the possessive adjective agrees with the noun coming before with, the boy with his parents, इसमें भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग चले। इसमें क्या है? फर्स्ट। हैज लगाया हमने, वर्ब क्या आई? हैज। द चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैव। यहाँ पे एज वेल एज में भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलता है, और ये विद के साथ भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ईच एंड एवरी के साथ। राइट? बच्चे समझ आ गए इतने? अब देखिए, एक तो ईच ऑफ था, एक था ईदर नेदर। इसको आइदर नाइदर भी बोलते हैं। आइदर और मीन्स, आइदर और नाइदर कहाँ पे यूज होते हैं? जब आपको मैम किसी एक को डिसाइड करना हो। यस, व्हेन यू हैव टू डिसाइड वन, एक, आइदर योर सिस्टर और यू हैव। अब इसमें सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, आइदर योर सिस्टर और यू हैव। सिस्टर और तुम, स्टूडेंट्स और नॉर द टीचर, इसमें भी सेकंड के अकॉर्डिंग, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। आइदर योर सिस्टर और यू हैव knit the sweater, this sweater। तुम्हारी सिस्टर ने और या तुमने ये स्वेटर को निट किया, बुना है। राइट? neither the students nor the teacher was in the class, ना तो स्टूडेंट्स ना तो बच्चे थे, ना तो टीचर था क्लास में। सो एज वेल एज, और ये क्या है? ये क्या करेंगे? ये वाला है, ये क्या करेगा? सेकंड फॉर्म लेगा। राइट? समझ आ गई इतनी? Yes, ma'am. ओके। द प्रोनाउन अपीयरिंग, अब ध्यान से देना देन का। देन के बहुत ज्यादा करेक्शंस आती हैं एग्जाम। देन ऑलवेज टेक सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस लेता है ये? सब्जेक्टिव केस। देन आई, देन ही, हिम, मोस्टली हम क्या है? इनकरेक्ट होता है। इनफॉर्मल में हम कह देते हैं माय ब्रदर इज लाइक नो, ही इज ओल्डर देन मी, बट ये गलत है। आई आएगा। देन क्या हमेशा लेता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे। सेशन में हिज, हर्स, देयर्स। ऑब्जेक्टिव मी, हिम, देम, योर, यू। राइट? इतना समझ आ गया? देन क्या लेना? दिखा रहा है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, मैनी ऑलवेज टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन। एक मैनी होता है और एक मैनी होता है। मैनी का मतलब बहुत ज्यादा, मैनी का मतलब एक, उनमें से एक। तो एक है तो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा ना, वो भी सिंगुलर आएगी। अंजू, आर यू गेटिंग मी? बच्चे समझ आ रही है? यस मैम। कोई डाउट है बच्चे बताइए। निहाल शेखर, अमृत गुप्ता, हर्षिंदर, अर्पित, उदय, शरद। नो डाउट। शरद मैम मैगी। हाँ जी पूछिए। यस, हाँ जी बच्चे पूछिए। एनीथिंग एल्स? कोई क्वेरी नहीं है? चलो फिर। इट कहाँ पे यूज होता है ये देखिएगा। सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
बच्चे इट कहाँ पे हम यूज करते हैं? थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसमें कोई लाइफ नहीं, बुक में कोई लाइफ होती है? एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं। अगर कोई डोमेस्टिक है तो आप ही शी इट यूज कर सकते हैं, राइट? डोमेस्टिक के लिए ही शी और इट, जो भी है इट तो आएगा ही आएगा, ही शी भी यूज कर सकते हैं। फॉर डोमेस्टिक, जो आप घर पे रखते हैं। चिल्ड्रन के लिए भी इट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेंडर का पता नहीं है चिल्ड्रन में, बॉय है गर्ल है। वेदर के लिए, सीजन के लिए हम जब नाउन और प्रोनाउन को जब हम स्ट्रेस देते हैं तभी भी हम यूज कर लेते हैं। इट वॉज इन दिल्ली दैट आई वॉज चीटेड बाय यंग मैन, ये दिल्ली में ही था। रेफरिंग टू फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क होता है? फ्रेज का कोई अपना मीनिंग नहीं होता, ना सब्जेक्ट ना वर्ब। एप्ट मीन्स करेक्ट, एप्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे आइए नेक्स्ट, माइन, आर्स, योर्स, ये सारे क्या है? पोजेसिव है ना ये सारे, ठीक है? द आर्मी, द जूरी, ये क्या है? ये सिंगुलर ले रहे हैं। अगर ओपिनियन की बात आएगी तो ये अपना अपना ओपिनियन देंगे, तब वर आ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन वर्ब। दैट कहाँ पे यूज होता है ये देखिएगा ध्यान से। ऑल, सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, all that glitters is not gold. Ram is the only person that can help. He is the same, same के साथ, only के साथ that आएगा। जब आपको ये है, हाँ जी पूछिए। मैनी वाला, मैनी सोल्जर्स वाला। ओके, मैनी बच्चे जैसे मैनी सोल्जर्स, मैनी है तो बहुत सारे सोल्जर्स है। अगर मैनी आ जाएगा तो सोल्जर के साथ एस नहीं लगेगा। मैनी है मतलब एक, उनमें से एक, राइट? Yes, 329F, you have raised hand. Please give name. नाम रखिए बच्चे। गैलेक्सी टैब, ये बच्चे का नाम है, उस नेम से स्क्रीन शेयर करिएगा प्लीज। Yes. Now you may take any book that you like. Any, more, none, nothing, same. They always take that. सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में कंपैरिजन, सुपरलेटिव हाईएस्ट काइंड ऑफ डिग्री होती है। जैसे मोस्ट, सबसे ज्यादा, मिस्टर केशवानी इज द मोस्ट लर्न्ड मैन दैट आई हैव एवर मेट। ये सबसे ज्यादा लर्न पर्सन है, जो आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा है, राइट? पर्सन, एनिमल्स के लाइफलेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, दैट आ सकता है यहाँ पे, बट ये क्लॉज के लिए आता है तब। मैम, हाँ जी, मींस यस मैम JURI मैम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आएगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट हैज इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। जब ये बच्चे पूरे आपको कंप्लीट करना होता है तो बीच में आप बिच नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये सारे कहाँ पे? इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल द सेम, इन सभी के साथ। जब आप कोई कंपैरिजन करते हैं, जैसे क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ, तब आएगा दैट ऑफ, उसके साथ। हाँ जी, समझ आया इतना? माई सेल्फ, ये सारे माई प्लस सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। अब और एक चीज ध्यान से देखिए, मैक्सिमम आप जब कोई बात करते हैं या तो फिर किसी टॉपिक में बोलते हैं, आप माई फादर एंड मी बोलते हैं, वो गलत है। देन के साथ भी सब्जेक्टिव केस आता है, माई फादर एंड आई, नॉट मी, माई फादर एंड आई। अगर अगर बिटवीन आता है ना तो बिटवीन में आता है, दिस इज बिटवीन माई फादर एंड मी। बिटवीन हमेशा मी लेते हैं। We went there and enjoyed always take ourselves, avail, yourself, myself, depends upon this. You है तो yourself, he है तो himself, it है तो itself.
हाँ जी बच्चे, यस, विच इज योर ब्रदर। सिलेक्शन के लिए हम विच यूज करते हैं, कोई सेलेक्ट करनी है हमें चीज, राइट। विच ऑफ दीज कलर्स इज सिंबॉलिक दिस पीस। ऑफ है तो आप वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, राइट। विच ऑफ दीज इंसेक्ट्स, मीज इंसेक्ट्स में से कोई एक की बात हो रही है। जैसे हम कह देते हैं व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट इज योर फादर, बोथ आर सेम। इट शोज ऑक्यूपेशन, क्या शो करता है, ऑक्यूपेशन। व्हाट्स देयर इन योर बैग, ये क्या है, थिंग। हु इज शी, व्हाट्स हर नेम, राइट। अब बच्चे एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो म्यूचुअल कंटैक्ट शो करता है। क्या शो करता है, म्यूचुअल, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, वन अनदर। ईच अदर आता है दो के लिए, बोथ के लिए। ईच अदर कहाँ पे यूज होता है, दो के लिए, बोथ, राइट। वन अनदर दे के लिए, जैसे दे हेट वन अनदर, बोथ लव ईच अदर। हाँ जी बच्चे, समझ आ गया? Yes, Ma'am, I give the example. ओके, गिव मी एग्जांपल। This is my book. मैम दिस जो है इसमें वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाँ, दिस इज माई बुक, दिस बुक की नहीं आएगा। अगर दिस बुक आएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि वो नाउन है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बारे में बताता है, हमें नाउन के बारे में यहाँ पे नहीं बताना। दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार, वर्ब आनी चाहिए, राइट। अंजू, अंजू कलेर, व्हाट्स योर नेम, जो भी नाम है बताइएगा। एग्जाम्पल दीजिए मेरे को एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, प्लूरल में दीजिए एग्जाम्पल, प्लूरल में एग्जाम्पल। मैम देयर आर मेनी बुक्स। मैम देयर जो है मैम वो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। देयर नहीं है, देयर थोड़ा ना है, दीज है। दीज आर माई बुक्स, देयर तो होता है, देयर मतलब यहाँ पे, देयर मतलब वहां पे। देयर आर मैनी बुक्स मतलब वहां पे बहुत सारी किताबें हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव हमें एक, सपोज जैसे एग्जाम्पल है ये, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई सेल फोन। दिस है ना, अगर एक दो चीजें और होंगी मेरे पास, दीज आर माइन, ये दो चीजें मेरी हैं, ये दो चीजें मेरी हैं, दीज आर माइन, दोनों। देयर का मतलब होता है वहां पे, राइट। देयर का मतलब यहाँ पे। आपने प्रीवियस असाइनमेंट कर ली थी सभी ने, आंसर मैंने भेज दिए थे। यस मैम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो मैम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।